اچھا محترمات، آج آج ہمارا جو آگے سبق ہے وہ ہے مد کے اجمالی احکام۔ مد کے اجمالی احکام، ویسے آپ ماشاءاللہ سب نے تقریباً مد کے بارے میں کچھ چیزیں پڑھی ہیں، مختصر سی دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ جو تفصیلی ہیں ان کو پھر جو ہے وہ ہم تھوڑا بعد میں پڑھ لیں گے، اور جو ہمیں تقریباً آتی جاتی ہوتے ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں۔ ویسے ماشاءاللہ آپ سب کو تقریباً آتی ہے، پتہ ہے کون کون سی باتیں ہیں، آپ نے پہلے بھی پڑھی۔ جی اچھا، آپ کو سب سے پہلے میں نے، اب جو آپ نے چیز پڑھی ہے وہ ایک الگ ہے، اب جو چیز ایڈیٹنگ کرنے والی ہے، جو چیزیں اب مین اہم ہیں جو ہم نے پہلے نہیں پڑھی، سب سے پہلے میں اس کی طرف فوکس کرواؤں گا۔ ایک محلے مد اور ایک ہوتا ہے سبب مد۔ ایک ہوتا ہے محلے مد، محلے مد، اور ایک ہوتا ہے سبب مد۔ یہ دو چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں۔ محلے مد کہتے ہیں مد کرنے کی جگہ کو، محل کہتے ہیں جگہ کو، مد مینس مد کرنے کی جگہ کو۔ سبب مد کہتے ہیں یعنی کس سبب کی وجہ سے آ رہا ہے سبب، آپ کو سبب تو پتا ہے، اب سبب کیا ہے مد کا، اور محل کیا ہے، جگہ کون سی بنے گی اور سبب کون سا بنے گا۔ سب سے پہلے آپ نے یہ دو باتیں اہم ہیں جو یاد کرنی ہے۔ محلے مد کون سے ہیں؟ محلے مد ہے الف، واو، یا مدہ اور لینیا، ٹھیک ہے؟ الف، واو، یا مدہ اور لینیا، یعنی حرف مدہ اور حرف لین، یہ ہے محلے مد، یہ ہے محلے مد۔ اور سبب مد کون سے ہیں؟ حمزہ، سکون، تشدید، حمزہ، سکون، تشدید۔ اچھا، حرف مدہ کے بارے میں تو سب کو پتا ہے، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ماشاءاللہ سارے جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں کہ حرف مدہ کون سے ہیں، ٹھیک ہے؟ خالی الف سے پہلے جو ہے نا وہ زبر ہو، اور اسی طرح ہی واو ساکن سے پہلے پیش ہو، اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو، یہ ہے حرف مدہ۔ اور حرف لین کون سے ہیں؟ واو یا ساکن، ٹھیک ہے، ما قبل کے مفتوح ہو تو یہ لین بن جاتے ہیں، یہ بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن یاد کیا کرنا ہے کہ محلے مد کتنے ہیں؟ محلے مد کتنے ہیں؟ محلے مد آپ دو بھی کہہ سکتے ہیں، دو کیسے کہہ سکتے ہیں؟ حرف مدہ اور حرف لین بھی کہہ سکتے ہیں، ایسے بھی کہہ سکتے ہیں۔ اوپر ایسے تین انہوں نے پوائنٹ بنائے ہیں، تین پوائنٹ اس لیے بنائے ہوئے ہیں کہ الف، واو، یا مدہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور حرف لین جو ہے وہ واو یا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے انہوں نے ایک تین پوائنٹ بنا دی۔ تو آپ حرف مدہ اور حرف لین کے اعتبار سے بھی یاد کر سکتے ہیں کہ حرف مدہ اور حرف لین کیا ہے؟ محلے مد، ٹھیک ہے؟ اب آگے آ جائیں سبب مد۔ سبب مد کیا ہوتا ہے؟ سبب یعنی کس سبب سے ادھر مد کی جا رہی ہے، کس وجہ سے ادھر مد کی جا رہی ہے، یہ سبب ہوتا ہے۔ تو سبب کون کون سا آ سکتا ہے؟ حمزہ آ سکتا ہے، سکون آ سکتا ہے، اور تشدید آ سکتا ہے۔ یہ تین قسم کے سبب آ سکتے ہیں جس کی وجہ سے آگے اس پہ مد، اس کے سبب کی وجہ سے مد کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب ان کی اندر تفصیلات ہیں وہ ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے حمزہ کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں۔ حمزہ کے بارے میں آپ نے تقریباً باتیں پڑھی ہیں، ٹھیک ہے؟ حمزہ کے بارے میں آپ نے یہ آگے مثالیں دی ہیں، یعنی سبب مد کی مثالیں دی ہیں۔ حمزہ کی مثال ہے قول، جا، قولو، قولو آمنا، یعنی قولو کو آگے آمنا سے ملائیں گے، یا پھر جا، یہ جا جو ہے یہ حمزہ متصل کی مثال ہے، اور قولو آمنا حمزہ منفصل کی مثال ہے۔ اسی طرح ہی سکون، دوسرا سبب کیا ہے؟ سکون، سکون یا تو عارضی ہوگا یا تو اصلی ہوگا، ٹھیک ہے؟ یا تو عارضی ہوگا یا تو اصلی ہوگا، جیسے آنا، یہ سکون اصلی ہے، نستعین یہ سکون عارضی ہے۔ اور اس کے بعد تیسرا پوائنٹ ہے تشدید۔ تشدید جیسے دابتن، ٹھیک ہے، الحاقۃ، تو یہ ہے تشدید کی مثال۔ قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ ہے چھوٹی مد، محلے مد، چھوٹی مد کا قاعدہ ہے، یعنی یہ نا کہ محلے مد کے بعد سبب مد نہ ہو تو چھوٹی مد ہوگی۔ آپ نے یہ بات سمپل سی یاد رکھنی ہے، ہم نے پیچھے ایک بات میں آپ کو، بلکہ دو تین دفعہ آپ کو یہ بات میں نے ریمائنڈ کروائی ہوئی ہے کہ یہ اصل میں یہ بھی چھوٹی مد ہی ہوتی ہے۔ جیسے ہم یہ حرف مدہ جو ہوتے ہیں نا، یہ ایک طرح کی چھوٹی مد ہوتی ہے، حرف مدہ ایک طرح کی چھوٹی مد ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے قول، قیل، قولو، ٹھیک ہے، قولو، یہ یہ مد، یہ بھی مد ہی کہلاتی ہے، لیکن یہ چھوٹی مد کہلاتی ہے۔ یہ کب ہوگی؟ یہ تب ہوگی، اس کو مد اصلی بھی بولا جاتا ہے۔ یہ کب ہوگی؟ یہ تب ہوتی ہے جب
सबब मद ना हो, महल्ले मद तो हो लेकिन सबब मद ना हो। ठीक है, आप देखें इसमें महल्ले मत तो आ रहा है, महल्ले मत हमने पढ़े है ना, हम अलिफ वाओ या मद्दा और लीनिया, तो महल्ले मत तो इधर आ रहा है लेकिन सबब मद नहीं आ रहा। ठीक है, आगे है बड़ी मद का कायदा। बड़ी मद का कायदा बिल्कुल उसके मुतरादिफ हो जाएगा। कैसे कि महल्ले मद के बाद सबब मद हो तो बड़ी मद होगी। अब सबब मद भी आपने पढ़ लिया, कौन कौन से हैं सबब मद? है हमजा सुकून और तशदीद, हमजा सुकून और तशदीद। अब एक बात आप समझ लें कि छोटी मद जो है वो एक कह लें कि मुख्तसर सी बात उसकी खत्म हो चुकी है, हमने करके उसकी बात आगे कर ली है। तो अब आगे हम बड़ी मद के कायदे पढ़ेंगे। छोटी मद का कायदा हमने ये पढ़ लिया कि महल्ले मद के बाद सबब मद ना हो तो उधर छोटी मद होगी, बात खत्म होगी। ठीक है, और उसके बाद बड़ी मद का कायदा जो हमने पढ़ा है वो है महल्ले मद के बाद सबब मद हो तो बड़ी मद होगी। जी जी, आगे हमारी बात है जी बड़ी मद के कायदे के बारे में, कि बड़ी मद महल्ले मद के बाद जब सबब मद हो तो बड़ी मद होती है। जैसे जा अल आना दाबतीन, यानी कोई भी सबब मद वाली मिसाल आ जाए तो उसमें समझ लें कि सबब मद आ जाए तो बड़ी मद हो रही है। अब नोट इधर लिखा है, अगर महल्ले मद के बाद सुकून आरजी हो यानी वक़्फ़ की सूरत में हो, ठीक है, जैसे अर्रजीम अर्रहीम नस्तईन मिन खौफ वस्सैफ, तो इसमें बड़ी और छोटी मद दोनों कर सकते हैं। लेकिन महल्ले मद अगर हरफ मद्दा हो तो बेहतर है कि आगे क्या करेंगे, तूल करेंगे, और अगर महल्ले मद जो है हरफ लीन हो तो बेहतर क्या है, आगे कसर करेंगे। ठीक है, यानी बड़ी मद करेंगे अगर हरफ मद्दा होगा, तो छोटी मद करेंगे अगर हरफ लीन होगा। ये बात मुझे कौन बता सकता है? मैंने ये कुछ 10 दफा ये बात बताई हुई है आपको कि इस तरह करके ये कौन सी मद की बात हो रही है इधर, और मैंने आपको बताया हुआ है कि इधर बेहतर क्या है, अगर हम क्या करें, और ये सारी बात मुझे कौन बता सकता है? ये मैंने आपको सबक के दौरानिए में भी बहुत दफा बताया हुआ है, अपने पिछले कोर्सेज में भी मैंने ये बात बताई थी। कोई एक्सप्लेन कर सकता है इस बात को मुझे? कैसब मैं बताऊं? जी बताइएगा। कैसब अगर तो ये जो है ना मद्दे फराई होगी ना, मतलब के हरूफे लीनिया में से वक़्फ़ की सूरत में आएगी, मद्दे आरिज लीन होगी, तो वहां पे तो हम्म। जो है ना कसर उला है। तो शाबाश, अगर और अगर मद्दे आरिज वक्फी होगी तो उसमें तूल ओला है। शाबाश, बहुत अच्छे जी, वेल डन, बहुत अच्छे। ये मैंने बात बहुत दफा रिमाइंड करवाई है कि जब मद्दे आरिज वक्फी करेंगे तो उसमें तूल ओला होगा, और मद्दे आरिज लीन करेंगे तो उस पे कसर ओला होगा। ठीक है, अब ये कैसे है मद्दे आरिज वक्फी और मद्दे आरिज लीन? मद्दे आरिज वक्फी आपको पता है, अर्रजीम अर्रहीम नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कोई भी मिसाल आप ऐसी ले लें, ये सब मद्दे आरिज वक्फी बन रही है। इसके आखिर में क्या आ रहा है, हरफ मद्दा आ रहा है। तो हम यहाँ पर जब वक्फ करेंगे ना, तो इसमें हम कोशिश करें कि तूल करें, ठीक है, बड़ी मत करें तो वो ज्यादा बेहतर है। कर सकते हैं छोटी मत भी, लेकिन बेहतर क्या है, बड़ी मत। और ऐसे ही कुछ मिसालें ऐसी हैं, जैसे इलाफी कुरैश वाली हमने मिसालें पढ़ी ली, इलाफी कुरैश इलाफिहिम रिहलत अश्शिताई वस्सैफ फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू, कि जू के अलावा बाकी वो आमनहुम मिन खौफ, ये जितनी भी चार मिसालें बनती हैं इलाफी कुरैश के अंदर, ये सारी मद्दे आरिज लीन की मिसालें बनती हैं। तो इसके अंदर बेहतर क्या है कि आप इसमें कसर करेंगे। चलें, शाबाश, वेल डन, बहुत अच्छे। अच्छा आगे चलें। ये जो नोट में बात लिखी है ना, ये यही लिखी है जो मैंने आपको मुख्तसर करके समझा दी है, कि मद्दे आरिज वक्फी के अंदर उन्होंने बोला है कि तूल ओला होगी, और मद्दे आरिज लीन के अंदर कसर ओला होगी, बस ये बात लिखी है सारी नोट के अंदर। तो ये आप अच्छे तरीके से इसको भी याद रखें। मद के तफसीली अहकाम आपने वैसे बुनियादी चीज तो पढ़ ली, जो बुनियादी मैंने दो बातें बताई थी कि महल्ले मद कौन से हैं, अलिफ वाओ या मद और लीनिया, ठीक है, और सबब मद कौन से हैं, हमजा सुकून तशदीद। ठीक है, आपने छोटी मद का कायदा भी पढ़ लिया और बड़ी मद का कायदा पढ़ लिया। अब आगे हम इसकी तफसील में चलेंगे। मद के तफसीली अहकाम। लुग़वी माना खींचना, लंबा करना, दराज करना। मद का लुग़वी माना खींचना, लंबा करना, दराज करना, और इस्तिलाही माना हरफ मद्दा या हरफ लीन पर आवाज का दराज करना। हरफ मद्दा या हरफ लीन पर आवाज का दराज करना, ये है मद की तारीफ। मुकम्मल तारीफ क्या है? लुग़वी माना खींचना, लंबा करना, दराज करना। इस्तिलाही माना हरफ मद्दा या हरफ लीन पर आवाज का दराज करना।
ये होगी मद की तारीफ। मद की अकसाम, अब ये मुतलकन तौर पर सबसे पहले तो दो किस्में हैं मद की, ठीक है। मद असली और मद फरई, मद असली और मद फरई। मद असली की तारीफ क्या है? जो अपनी असली और जाती मिकदार के मुताबिक पढ़ी जाए और वो किसी सबब पर मौकूफ ना हो। मैंने आपको कई दफा बताया है ये भी बात आपको, कि जब हम पढ़ते थे तो आप किसी भी हरफ के ऊपर क्या करते थे? मद असली यानी आप कौल, कूलू, ठीक है, ये कोई भी आप हरफ मद्दा यानी पढ़ते थे तो मैं आपको बताता था कि इधर क्या हो रहा है, मद असली हो रही है, मद असली हो रही है। मद असली क्या होती है? अब वो तारीफ आपके सामने आ गई है कि मद असली जो अपनी असली और जाती मिकदार के मुताबिक, हरफ मद्दा की असली और जाती मिकदार एक अलीफ है, तो उसको हम एक अलीफ के बराबर खींचेंगे। तो ये है बात, इससे मुराद हरफे मद्दा है, ठीक है। मद्द असली क्या कहेंगे? हरफे मद्दा। जहां सिर्फ हरफे मद्दा हो रहा होगा, उसके बाद कोई सबब नहीं आ रहा होगा, तो वो मद्द असली कहलाएगी। आपने ये बात याद रखनी है। मद्द असली जो अपनी असली और जाती मिकदार के मुताबिक पढ़ी जाती है और वो किसी सबब पर मौकूफ नहीं होती। अब देखें, मद्द असली कौल, कील, कूलू, ये जो हमने तीन आपको, ये किसी सबब पर वकूफ नहीं है। सबब कौन से थे? हमजा सुकून तशदीद, हमजा सुकून तशदीद। इसके बाद ना भी आएंगे तो ये अपनी असली और जाती मिकदार के मुताबिक खींची जाएगी। अगर आ जाएंगे तो वो तो मद्दे फरई वैसे ही बन जाएगी। तो अगर बेसिक अपनी ये मिकदार के मुताबिक पढ़ी जा रही है, यानी एक अलिफ के बराबर इसको खींचा जाएगा, तो ये मद्दे असली कहलाएगा। दूसरी किस्म है मद की, मद्दे फरई। उसकी तारीफ क्या है? जो अपनी असली और जाती मिकदार से बढ़ाकर पढ़ी जाए और वो किसी सबब पर मौकूफ होती है। ये भी आपने बात देखी, ठीक है। वो किसी सबब पर मौकूफ होती है, यानी हरफ मद्दा। अब हमने पहले पढ़ा हरफ मद्दा की मिकदार एक अलीफ है जी, एक अलीफ के बराबर हमने उसको खींचना। अब जब हमने एक अलिफ से बढ़ाना है इसको, तो उसके लिए लाजमो मलजूम है कि हमें उसके लिए सबब की जरूरत पड़ेगी। जब सबब आएगा तब ही इसको हम बढ़ा सकते हैं। अगर सबब नहीं आएगा तो उसकी असली और जाती मिकदार जो है एक अलिफ, हम उसके मुताबिक ही पढ़ेंगे, इससे ज्यादा नहीं लंबा कर सकते, ठीक है। तो मद फरई की तारीफ क्या हुई? कि जो अपनी असली और जाती मिकदार से बढ़ाकर पढ़ी जाए और वो किसी सबब पर मौकूफ हो, किस सबब पर मौकूफ हो। जैसे वही मिसालें सारी, जा, अल, आना, दाबत, इनको भी मिसाल दे दें, ठीक है। मिकदार मद कितनी है? मिकदार मद चार है, या आपको पता है, सॉरी तीन है। आपको पता है कि तूल जो है वो छह हरकत, तीन अलिफ भी होता है, छह हरकत भी, हरकत भी होता है, ठीक है। इसी तरह ही तवस्सुत जो है वो चार हरकत, और इसी तरह ही दो अलिफ के बराबर भी होता है। इसी तरह ही कसर जो है वो दो हरकत और एक अलिफ के बराबर भी होता है। यानी सबसे छोटी मद जो है वो कसर होती है, उससे बड़ी यानी दरमियानी मद जो है वो तवस्सुत होती है, और सबसे लंबी मद को तूल कहा जाता है, जिसकी छह हरकत मिकदार होती है और तीन अलिफ के बराबर भी उसे बोला जाता है। यानी एक अलिफ की जो मिकदार है ना वो दो हरकत है। आपने ये बात याद रखनी, ठीक है। ये भी कुलिया याद रखना कि एक अलिफ की मिकदार दो हरकत है और दो अलिफ की मिकदार चार हरकत, तीन अलिफ की मिकदार छह हरकत हो जाएगी, ठीक है जी। मद्दे, अब आगे हमने अब असल में हमने जो मद्दे असली है ना वो हमने अपनी कंप्लीट कर लिया, क्योंकि मद्दे असली की आगे कोई वजूहात और कोई बातचीत नहीं है। अब जो बाकी सारी मद्दे हैं जिसकी तफसीलात हम पढ़ेंगे वो सब मद्दे फरई होंगी, सब मद्दे फरई होंगी। जी समझ आ गई है जी। बस इतना याद कर लें, इससे ज्यादा नहीं, फिर ज्यादा हो जाएगा, फिर याद नहीं रहना। ये कुछ चीजें अहम जरूरी मैंने बताई हैं जो याद करनी है, वो आपने याद करनी है। कि एक महल्ले मद और एक सबब मद। महल्ले मद किसे कहते हैं? सबब मद किसे कहते हैं? महल्ले मद कौन कौन से हैं? सबब मद कौन कौन से हैं? छोटी मद का कायदा क्या है? बड़ी मद का कायदा क्या है? और इसी तरह ही नोट के अंदर जो मैंने आपको मुख्तसर सी बात बताई है कि मद आरिज वक्फी के अंदर तूल ओला है। तीनों मिकदारें हो सकती हैं, हो तीनों सकती हैं, लेकिन तूल ओला है। मद यानी लीन के अंदर भी तीनों हो सकते हैं, लेकिन उसमें कसर ओला है। इसी तरह मद के तफसीली काम के अंदर हमने पढ़ा है, इसकी पहले तारीफ पढ़ी है। तारीफ के बाद हमने मद की अकसाम पढ़ी है। मद की हमने मुतलकन तौर पर दो किस्में पढ़ी है, मद असली और मद फरी। मद असली की तारीफ भी आपको बता दिया, फरई की तारीफ भी बता दिया, लेकिन असली की बात खत्म हो गई है। मद असली यहाँ तक की मुकर्ररा थी जो हमने पढ़ ली है, ठीक है। आगे मद्दे फरई की सारी बातें शुरू होंगी। मद्दे असली के बारे में खत्म होगी बातें, मद्दे फरई के मुतालिक जितनी भी आगे मद्दे आएंगी ये सब मद्दे फरई होती हैं, ठीक है। और हमने मिकदारे मद पढ़ी है, तूल, तवसुत, कसर। तूल सबसे बड़ी होती है, तवसुत दरमियानी, और कसर सबसे छोटी मद होती है जी।